The focus should be on becoming a strong and influential personality. Cultivate compelling communication skills, focus on building trust, and learn how to expand and leverage your potential. With this, a very warm good morning to one and all present here. I, Priyanka Verma, welcomes you all in today's program hosted by the History Society of Shamlal College Evening, Sakshir, in association with IQAC. Today is a departmental lecture on teacher education in India, prospects and opportunities by Dr. Sunil Kumar Sir, Assistant Professor, Department of Education in Delhi University. Sir, although words can't do justice to the achievements you have, but still, Sir has begun his professional career as school teacher and taught mathematics at secondary and higher secondary level. He served as lecturer in education at District Institute of Education and Training more than 14 years and taught various courses of DLED program like teacher education, inclusive school, philosophical and psychological foundation of education during his stay at Diet. He has wide experience of planning and organizing different seminars, orientation programs, workshops for in service school like teachers, members of Panchayati Raj institutions, health workers, etc. He has also guided researchers at master level and guided students at PhD level. He has organized two national seminars and workshops with Dr. Pinkle R. Chaudhary at Department of Education. This short-term refresher course was implemented in the school and with the support of research scholars and pedagogy students who are working in mathematics and science education. Sir presently working on issues and challenges faced by teachers, guidance, in pedagogy of science and mathematics at secondary level. Sir, words can't do justice to the achievements that you have achieved, and I will not be able to tell everyone how much you have achieved. In just 2 minutes, everyone know about it. So, the best way to predict the future is to create it, as rightly said by Abraham Lincoln. With this, the stage is over to you, and we are all ears to listen to you today. Okay. Thank you, Professor Hemant Kukreti ji, worthy principal, and a special thanks to Dr. Manish ji, who invited me, Dr. Anil, Dr. Pramod Kumar, and their team. Uh, Really, it is wonderful for me to speak on before you people, and actually teacher education is a largest scope area, we can say कि हमारे देश में, हमारी कंट्री में वो एक बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है हमारे स्टूडेंट्स के सामने कि वो टीचर एजुकेशन में आ सकते हैं. सो जिस दिन हमारा ये इंटरेक्शन हो रहा था इस प्रोग्राम को लेके अनिल जी के साथ, सो आई वांट टू शेयर दैट कि बड़े सारे हमारे स्टूडेंट्स, क्योंकि मेरा कुछ एक्सपीरियंस ये रहा पिछले सालों में, मैंने बीएड एडमिशन को देखा, तो मुझे ये लगा कि बहुत सारे हमारे कंट्री के यूथ जो अपने ग्रेजुएशन करते हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा पता नहीं है अबाउट टीचर एजुकेशन के वो एक करियर हो सकता है उन लोगों के लिए, वो टीचर एजुकेशन में अपना फ्यूचर बना सकते हैं. सो फिर हमने ये एक टाइटल घड़ा, सोचा कि what is teacher education and what are the prospects of teacher education and what kind of opportunities are there. सो आज का हमारा जो सेशन रहेगा स्पेसिफिकली वो आपकी एक समझ कि टीचर एजुकेशन वास्तव में क्या है, हम क्यों इसको एक अलग एक स्ट्रीम के तौर पे, एक अलग एक सब्जेक्ट के तौर पे हम इसको देख रहे हैं, और टीचर एजुकेशन का मायने क्या है, मतलब क्या है, कंसेप्ट क्या है, और आप टीचर एजुकेशन में अगर आना चाहते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रिक्वायर्ड हैं, कौन कौन से ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, कहाँ कहाँ पे आप
टीचर एजुकेशन को परस्यू कर सकते हैं. सो विद अ स्मॉल brief presentation, then I share with you about our Department of Education, Central Institute of Education, and the process of admission. उसके बारे में हम आपसे बातचीत करेंगे. दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप अगर टीचर एजुकेशन में आना चाहते हैं तो आपके सामने क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं. सो एक छोटा सा प्रेजेंटेशन मेरा रहेगा. So I just share my screen. Yes. So first of all, we should know what is teacher education और इसका मतलब मायने क्या है. So teacher education means is it a process of preparation of teacher? Yes, exactly. एक टीचर बनाने की एक प्रक्रिया है, एक सिस्टम है जहाँ पे टीचर बनाए जाते हैं. एंड एक इसका एक जिसको हम एक थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव में अगर हम सोचें तो हम टीचिंग क्या है और टीचिंग कैसे की जा सकती है, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ टीचिंग, जो थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव है टीचर एजुकेशन का, वो हमें ये बताता है कि what kind of skills are required to teach, what kind of competence is required to teach. So टीचर एजुकेशन एक सिंपल टर्मिनोलॉजी में अगर हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, so it is a type of education that required for teaching, and it is required to develop competence among the teachers how to teach. And we can also say that कि भाई टीचर एजुकेशन कोई कोर्स है, स्पेशल कोर्स होगा, प्रोफेशनल कोर्स होगा जो टीचर्स को तैयार कैसे करते हैं और टीचर्स को कैसे पढ़ाया जाता है, उसका एक कोर्स. तो टीचर एजुकेशन में एक बहुत ही छोटा सा एक प्रेजेंटेशन टू मेक योर अंडरस्टैंडिंग वेरी सिंपल इट इज कि टीचर एजुकेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम टीचर्स को बनाते हैं, टीचर को तैयार करते हैं, टीचर का प्रेपरेशन करते हैं, टीचर की आइडेंटिटी डेवलप करने की कोशिश करते हैं. और टीचर एजुकेशन में अगर हम चीज़ों को देखें तो we can say this is the philosophy that teachers are made not born. जो बिल्कुल उल्टा था. पहले हम ये कहते थे कि भाई टीचर पैदाइशी होते हैं, बनाए नहीं जा सकते. बट हमने ये देखा कि इफ वो स्किल्स, वो कॉम्पिटेंसीज, वो नॉलेज, वो एटीट्यूड्स, वो सारी चीज़ें अगर हम एक सिस्टम के अंदर ले आए, जो भी एक टीचर की पर्सनैलिटी है, जो उसके प्रोफेशनल जो उसके ड्यूटीज हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उसका एक ऐसा डिजाइन किया जाए, देन वो स्किल्स हम वहां से लें और नए लोगों के सामने अगर रखें, उनको उस सिस्टम में ले जाएं जो टीचर नहीं है. So we can create teacher, we can prepare teacher. इसके पीछे का मसला और भी है, इसका बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल फ्रेमवर्क है, उसमें हम जाना नहीं चाहते. कि हमारी कंट्री का जो पॉपुलेशन है या जो रिक्वायरमेंट ऑफ एजुकेशन है वो बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए हमें डिफरेंट लेवल पे टीचर्स की ज़रूरत रहती है. आगे हम स्टडी करेंगे कि कौन कौन से लेवल हैं. So we can say that if we consider teaching as a science, so that means teacher should acquire some knowledge, some competence, some skills how to teach. So that is teacher education. So हम ये कि हम वो स्किल, वो कॉम्पिटेंस, वो नॉलेज हम एक सिस्टम के अंदर टीचर्स को दे सकते हैं और उनकी आइडेंटिटी एज ए टीचर डेवलप कर सकते हैं, हम टीचर को प्रिपेयर कर सकते हैं. तो ये कंसेप्ट इस तरह से इवॉल्व हुआ है कि टीचर
बनाए जा सकते हैं, उनको बशर्ते हम वो सारी चीजें मुहैया कराएं, वो सारे एक्सपीरियंसेस, वो सारी प्रैक्टिसेस, हाउ टू टीच, that is the part of so that means एक theoretical orientation, how to teach knowledge, what are the different methodologies to teach, what are the psychological basis to be considered, और टीचर को क्या चीजें करनी है, किस तरह से करनी है, बच्चों के किस लेवल पे किस तरह का टीचिंग करना है. There are stages of learning, there are stages of there are style of learning, there are individual difference among the students. So वो सारा knowledge एक टीचर को जरूरी है. Now presently we are talking about the social cultural identity, social cultural context of children, जो हमारे अभी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क वो बोलता है कि नॉलेज is not fixed, and the transfer of knowledge वाला जो हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच था, now we are in the stage that knowledge is constructed, and ज्ञान की रचना होती है, ज्ञान का निर्माण होता है, ज्ञान की निर्मिति होती है, ज्ञान स्थायी नहीं है, और हर बच्चा अपने हिसाब से अपने नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है. सो टीचर एजुकेशन में डिफरेंट पर्सपेक्टिव टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड, कि भाई बिहेवियरिस्टिक, आपका बिहेवियरिस्टिक मॉडल है जिसमें हम ट्रेनिंग स्किल्स को ज्यादा फोकस करते हैं, रिवार्ड पनिशमेंट को ज्यादा फोकस करते हैं. दूसरी तरफ हम ये कह रहे हैं कि चाइल्ड ऑटोनॉमी दी जाए, बच्चों को स्वायत्तता दी जाए, वो क्या सीखना चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन. सो हम ये सारी बातें हम टीचर एजुकेशन के अंदर टीचर्स के साथ शेयर करते हैं. सो टीचर एजुकेशन का थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव ये है कि देयर इज सम थ्योरी जो टीचर्स को बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ताकि उसका एक थियोरेटिकल फाउंडेशन तैयार हो जाए. सो व्हाई टीचर एजुकेशन, अगला सवाल हमारा ये आता है. सो वेरी सिंपल कि दैट की क्वालिटी ऑफ स्कूल एजुकेशन, कि अब आप ये यहाँ पे मैं टर्म स्कूल एजुकेशन इस्तेमाल कर रहा हूँ, बट any kind of education, whether it is a school education, college education, or university education, that largely depend on the quality of teachers. So शिक्षा, अध्यापक शिक्षा या टीचर एजुकेशन स्कूल एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करने का एक बहुत बड़ा तरीका है, माध्यम है. कॉम्पिटेंट टीचर चाहिए सोसाइटी में, कमिटेड टीचर चाहिए. मैं आई एम वेरी हैप्पी टू हियर अबाउट दैट कि भाई डॉक्टर मनीष जी लगातार पिछले कुछ समय से सेमिनार कर रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए. सो इट इज हिज कमिटमेंट. आइदर देयर इज नो नीड टू कि भाई जैसे चल रहा है चलने दो, बट in society the role of teacher is very important. So teacher education is one of the most important factor who affect the quality of school, university or college education. So to prepare competent, committed, professionally well qualified teachers जो हमारे सिस्टम की डिमांड को पूरा कर सकते हैं, उन इसके लिए हमें टीचर एजुकेशन की जरूरत है. और टीचर एजुकेशन, क्योंकि अगर हम इंडियन कंटेक्स्ट में देखें तो टीचर एजुकेशन का जो एरिया है स्पेसिफिकली हमने स्कूल एजुकेशन के लिए रखा है, अदर कंट्रीज की तरह नहीं है. वैसे तो हमें हर लेवल पे टीचर तैयार करने चाहिए, वेदर दे आर टीचर टीचिंग एट कॉलेज और वेदर दे आर टीचिंग एट यूनिवर्सिटी लेवल, बट देयर आर सम फैक्टर्स
जो हमारे कंट्रोल से बाहर हैं, और हो सकता है आने वाले समय में हम करें, और उसके पीछे और भी रीजनेबल फैक्टर्स हैं जो ये तय कर सकते हैं कि स्कूल एजुकेशन ही मेजर फोकस्ड एरिया है जहाँ पे टीचर प्रेपरेशन की ज़्यादा ज़रूरत है। एंड देन टीचर एजुकेशन एक ऐसी कड़ी है जो स्कूलिंग और हायर एजुकेशन को जोड़ने का कोशिश करता है। और हम ऐसा बोलते हैं कि टीचर्स आर नेशन बिल्डर, तो एक बात ये भी है, ये रिकॉग्नाइज्ड फैक्टर है। हमारे हिंदुस्तान में जैसे मैंने कहा कि टीचर एजुकेशन सिर्फ स्कूल एजुकेशन तक है, बट आई थिंक इट इंक्लूड्स प्रेपरेशन ऑफ टीचर एट ऑल लेवल। वो आगे हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज एक और चीज के एजुकेशन टीचर के बिना नहीं हो सकता। सो टीचर के हाथ में एक बहुत बड़ी बात है कि वो एक अच्छे सिटीजन बनाएगा। वो हम ये बोल रहे हैं कि एजुकेशन का पर्पज ही ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड है, होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, वी कैन से दैट। उसका पर्सनैलिटी का हिस्सा, उसका इमोशनल वेलबींग, उसका इंटेलेक्चुअल एरिया, उसका स्कॉलिस्टिक एज वेल एज स्कॉलिस्टिक एरियाज, बोथ एरियाज उसके एजुकेशन के द्वारा हमने तय करने हैं, उसको इम्प्रूव करना है, उसको डेवलप करना है। ये शिक्षा का उद्देश्य है। सो अगर इसको पूरा करना है तो वी कैन से ओनली एजुकेशन इज द इंस्ट्रूमेंट। वो इस चेंजेस ला सकता है, वो सोसाइटी में बदलाव ला सकता है। सो टीचर्स का बहुत बड़ा रोल सोसाइटी में है। सो टीचर लर्न दिस आर्ट, जो टीचिंग का आर्ट है, हाउ टू टीच, what are the psychology of teaching, what are the different methodology of teachings, वो सारा ये आर्ट एक किस्म से हम इसको कह सकते हैं, साइंस एंड आर्ट। वो टीचर एजुकेशन प्रोग्राम जो डिफरेंट लेवल पे होते हैं उनसे ही टीचर सीखते हैं, इसलिए भी टीचर एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है। एंड वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द टीचर एजुकेशन इज टू रेजिंग द प्रोफेशनल स्टेटस ऑफ टीचर्स and developing them in them greater commitment to the society, अपने स्टूडेंट्स के प्रति, अपने व्यवसाय के प्रति, अपने प्रोफेशन के प्रति, अपने प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस को इंक्रीज करने के लिए, और जो भी जिस तरह के भी परफॉर्मेंस स्किल्स हैं जो टीचर को करने हैं, हाउ टू कम्युनिकेट, हाउ टू एक्सप्लेन, हाउ टू डिस्क्राइब, हाउ टू राइट ऑन द बोर्ड, how to illustrate with examples, how to prepare lesson plan, how all kind of planning, what are the ways to adapt the curriculum according to the need of the students, ये सारी चीजें टीचर एजुकेशन ही बताती है। इसलिए टीचर एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट। एंड देन एक और टीचर एजुकेशन का कंसर्न है, वो मैं अभी बहुत ज़्यादा आप लोगों से शेयर नहीं करना चाहता, बिकॉज जब तुम टीचर एजुकेशन में आएंगे आप लोग, देन वी विल डिस्कस लार्जली ऑन दैट। बट देयर आर सम कंसर्न, स्पेसिफिक कंसर्न अबाउट टीचर एजुकेशन। ये मैं इसलिए इस स्लाइड को लेके आया हूँ कि जब आपको टीचर बनने का आपका इरादा हो एंड यू वांट टू बी अ टीचर, सो डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है कि हमें कहाँ से टीचर एजुकेशन को लेना है, कौन से इंस्टीट्यूशन से करना है, किस तरह के इंस्टीट्यूशन सिस्टम के अंदर हैं। बिकॉज अगर आप क्वालिटी इंस्टीट्यूशन से अगर आप टीचर एजुकेशन लेते हो, सो दैट वो आपका ग्रूमिंग एज ए टीचर बहुत बेहतर तरीके से कर पाता है। देयर आर n number of institutions all over the India who provide teacher education. What we have to decide, there is a system, NCT, National Council of Teacher Education, look after the teacher education. So I think it is your decision how to go ahead. And there are
so many changes are required in teacher education system. फिर भी चल रहा है, बट इफेक्टिविटी, वो सारी चीजें रिक्वायर्ड हैं। क्वालिटी कंसर्न हमेशा टीचर एजुकेशन के साथ जुड़ा हुआ मुद्दा है। टीचर एजुकेशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। वी कांट से कि आप 2 सालों के प्रोग्राम से या 3 सालों के प्रोग्राम से तमाम उम्र टीचर एजुकेशन को कर पाएंगे। सो उसके बारे में अगले कुछ स्लाइड्स हमारे बताते हैं टीचर एजुकेशन के अंदर आता क्या है। सो टाइप ऑफ टीचर एजुकेशन जल्दी से हम इसको देखेंगे, प्री सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम एंड इन सर्विस। तो 2 तरीके से हम देख रहे हैं टीचर एजुकेशन को। ये सारे लेवल पे टीचर एजुकेशन है, नॉट ओनली स्कूल लेवल पे। प्री सर्विस टीचर एजुकेशन मीन्स कुछ सिस्टम के अंदर हमें प्री सर्विस प्रोग्राम्स रिक्वायर्ड रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको स्कूल एजुकेशन में करियर बनाना है तो आपको बीएड चाहिए, आपको डीएलएड चाहिए, आपको वीएलएड चाहिए, है ना। तो इस तरह के कोर्सेज जो हैं जो आप नौकरी में आने से पहले करते हैं, सर्विस में एंटर होने के पहले के जो कोर्सेज हैं, दैट इज कॉल्ड प्री सर्विस। सेवा, पूर्व सेवा कालीन शिक्षक कार्यक्रम, शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम। तो प्री सर्विस, अब एजुकेशन टर्म इस्तेमाल कर रहे हैं, अदरवाइज वी कैन से ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी हम इसको कहते हैं। आप थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव जैसा बनाने के लिए वी यूज द टर्म एजुकेशन। तो प्री सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स ज्यादातर स्कूल एजुकेशन में जरूरी हैं, और कुछ स्पेशलाइज्ड जो हमारा सिस्टम है, जैसे डिसेबल्ड पीपल्स की एजुकेशन के लिए हमें सम स्पेसिफिक स्किल्स आर रिक्वायर्ड। तो प्री सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को हम देखेंगे कौन कौन से हैं। इन सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स मींस आप जब टीचर बन जाते हैं, टीचर बनने के बाद आपकी अपॉइंटमेंट हो जाती है, सो यू नीड कि टाइम टू टाइम आपको अपडेट रहना है। आपका प्रोफेशनल डेवलपमेंट बहुत जरूरी है, आपका टीचर का कंटिन्यू एजुकेशन बहुत जरूरी है कि उनको शिक्षा में अपने आप को अपडेट रखना है। नई नई चीजें, नए नए रूल्स, नए नए लॉज, ये सारी चीजें आती हैं। एंड सम टाइम we need that competence which we gained in our pre-service teacher education program. तो इन सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम जो हैं, जिसमें एफडीपीज आपके आते हैं, ये सेमिनार्स आते हैं, आपके वर्कशॉप्स आते हैं, आपके ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स आते हैं, ये सारे इन सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स हैं जो टाइम टू टाइम रिक्वायर्ड भी रहते हैं आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए, और सम टाइम आपके प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए भी बहुत जरूरी है। सो अगर इस सारी स्टोरी को समझना है तो हमें कि लेवल ऑफ एजुकेशन के आधार पर हम कर सकते हैं। जैसे स्कूल एजुकेशन में दोनों तरह के कोर्सेज रिक्वायर्ड हैं, प्री सर्विस और इन सर्विस। कॉलेज एजुकेशन में जो अगर हम स्कूल एजुकेशन की क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया के ऊपर डिस्कस करेंगे, स्कूल एजुकेशन का प्री सर्विस और इन सर्विस कंपोनेंट। इन सर्विस तो वही हो गया कि वो जाते हैं, तो प्री सर्विस में किस तरह के कोर्सेज हैं और उनके लिए क्या क्वालिफिकेशन है, ये हमारा ज़्यादा फोकस में रहेगा आज का। कॉलेज एजुकेशन जनरली उसमें आपके एक मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आप पीएचडी हों, आप नेट सेट क्वालिफाइड हों, आपका 55% आपको चाहिए होगा अपने पीजी डिग्री में, एंड देन पीएचडी इज क्वालिफिकेशन, नेट इज योर क्वालिफिकेशन। फिर एक कमीशन के थ्रू आप कॉलेज में जॉब पे लगते हैं, जो स्टेट के कॉलेज हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी के अंदर कॉलेजेस आते हैं। और कुछ ऐसा एरियाज भी हैं, कुछ ऐसी जगहें भी हैं जहां इंटरव्यू के बेस पे भी आपको जॉब मिलता है, और कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे आपको इंटरव्यू नहीं है, डायरेक्ट इंटरव्यू नहीं है, बट आपको पहले सर्विस कमीशन का, कॉलेज प्रोफेसर का वो एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है, फिर आपका इंटरव्यू होता है, एंड देन आप एक सिस्टम के अंदर एज ए टीचर आ जाते हो। सो कॉलेज एजुकेशन
में आने की अपॉर्चुनिटी ये है कि आपका पोस्ट ग्रेजुएट चाहिए, उसमें नेट सेट की क्वालिफिकेशन चाहिए, और नाउ आने वाले दिनों में यूजीसी ये रिकमेंड भी कर रहा है कि आपको पीएचडी भी चाहिए। यूनिवर्सिटी एजुकेशन सिस्टम में अभी तक जो नेट सेट उनके लिए भी लाजमी है, जरूरी है, होना चाहिए, और पीएचडी भी है, पीएचडी क्वालिफिकेशन उनके पास होना चाहिए। एंड जिस भी फैकल्टी, जिस भी डिपार्टमेंट में जाते हैं उसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए। तो डिफरेंट जितने भी हमारे स्ट्रीम्स हैं, उन स्ट्रीम्स में उनका पीएचडी, कॉमर्स में है तो कॉमर्स में पीएचडी हो, अगर वो पॉलिटिकल साइंस में है तो उसमें, लैंग्वेज में तो हिंदी में, इंग्लिश में, जिस भी एरिया, जो भी स्ट्रीम है उसमें उनका पीएचडी होना, उनके कुछ रिक्वायर्ड जो चीजें हैं वो उनके पास हो, तो दे कैन अप्लाई फॉर द यूनिवर्सिटी एजुकेशन प्रोग्राम। अब इन दोनों में, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में, कॉलेज टीचर प्रेपरेशन का हमारे पास अभी तक कोई ऐसा जिसको बोलते हैं कि इंस्टीट्यूशन नहीं है जहाँ पे इस तरीके के कोर्सेज करवाए जाएं फिर वो कॉलेज एजुकेशन में आए। तो स्टिल हमारी कंट्री में एटलीस्ट दोनों के लिए कुछ भी नहीं है। इसके पीछे फैक्टर ये भी है कि ज़्यादातर जो चाइल्ड साइकोलॉजी है, ज़्यादातर जो एडोलेसेंट एज के बाद जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है बच्चों की, वो पूरा कर चुके होते हैं। तो हम ज़्यादा अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज को हैंडल करते हैं जहाँ बच्चों की एक समझ वो बन चुकी होती है, वो फॉर्मल ऑपरेशन एनालिसिस, एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग, लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग बच्चों को डेवलप हो चुका होता है। तो उस लेवल पे हमें इस तरह के, तो यहाँ पे जो टीचर एजुकेशन है वो इन सर्विस फॉर्म में देखी जाती है। फॉर एग्जांपल फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम, सेंटर फॉर, इनके लिए सेंटर्स बना के रखे हुए हैं। कॉलेज एजुकेशन के जो टीचर्स हैं उनके प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए बड़े सारे सेंटर्स हैं जहाँ पे वो ईयरली, 2 ईयरली, एज पर देयर रिक्वायरमेंट वो अपने ओरिएंटेशन प्रोग्राम, रिफ्रेशर कोर्सेज वो करते रहते हैं। सिमिलर द केस विद द यूनिवर्सिटी एजुकेशन सिस्टम। तो वहाँ पे दो मुख्य बातें वही हैं कि वो सिर्फ इन सर्विस एजुकेशन में आने के बाद ये कोर्सेज करते हैं। देन come to the school education. In school education we need different kind of teacher, and जैसे प्राइमरी, नाउ इट इज, ये भी एक ऑप्शन, बहुत जबरदस्त ऑप्शन हमारे पास आ गया है कि प्री प्राइमरी टीचर्स प्रिपरेशन जो था, या प्री प्राइमरी टीचर्स का रिक्रूटमेंट जो था, वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में ही होता था, गवर्नमेंट में नहीं था। बट गवर्नमेंट ने नाउ समग्र शिक्षा अभियान के तहत एक पॉसिबिलिटीज, एक अपॉर्चुनिटीज और है आप लोगों के सामने, इफ यू वांट टू बी अ प्री प्राइमरी टीचर, जो नर्सरी और केजी सिस्टम। तो एक अपॉर्चुनिटी हमारे पास ये, इसको क्लब कर दिया गया, इसको इंटीग्रेट कर दिया गया है स्कूल एजुकेशन के साथ। अब इट इज द पार्ट ऑफ स्कूल एजुकेशन। अदरवाइज फर्स्ट से हमारा स्कूल एजुकेशन स्टार्ट होता था, और नर्सरी, प्राइमरी, प्री प्राइमरी क्लासेस जो थी, आइदर वो आंगनवाड़ी, वो भी फॉर्मल नहीं था। अब नाउ इट इज अ फॉर्मल सिस्टम ऑफ एजुकेशन एंड इट इज द पार्ट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। सो नर्सरी एंड किंडरगार्टन सिस्टम जो है, नर्सरी सिस्टम, एनटीटी टीचर्स का एक और ऑप्शन हमारे सामने खुल जाता है, एक और अपॉर्चुनिटी हमारे सामने आ जाती है। दूसरा हमारे पास जो कैटेगरी ऑफ टीचर है, दैट इज प्राइमरी टीचर। मैं आई एम नाउ टॉकिंग अबाउट द स्कूल एजुकेशन। सो प्राइमरी टीचर्स में फर्स्ट टू फिफ्थ लेवल ऑफ क्लास के लिए टीचर्स डेवलप करने होते हैं। एलिमेंट्री टीचर्स में हम प्रिपेयर करते हैं फर्स्ट टू 8 लेवल क्लासेस के। दोनों में फर्क है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। देन सेकेंडरी टीचर्स, वो टीच एलिमेंट्री एज वेल एज सेकेंडरी क्लासेस, दोनों पढ़ानी पड़ती हैं, बिकॉज टाइप ऑफ स्कूल्स आर देयर। इंडिपेंडेंट प्राइमरी स्कूल्स आर देयर, तो इंडिपेंडेंट प्राइमरी टीचर्स आर रिक्वायर्ड। अभी तक ऐसा सिस्टम नहीं है जहाँ फर्स्ट टू 8th क्लास इकट्ठा काम करता हो, अगर आप प्राइवेट को छोड़ के देखें। सो इन गवर्नमेंट सेक्टर
There are independent primary school, there are independent middle school, there are independent high school, there are joint high and elementary schools, we can say secondary school, senior secondary में आप देखेंगे 6 to 12 तक की क्लासेस होती हैं। तो इंडिपेंडेंट हाई स्कूल भी हैं जहां सिर्फ 6 to 10th की क्लासेस होती हैं। सो इस तरह से टीचर का हम अपॉर्चुनिटीज हैं, हम इस तरीके से टीचर एजुकेशन को देख सकते हैं, टीचर प्रेपरेशन के सिस्टम को समझ सकते हैं। सो क्या प्रोस्पेक्ट्स हो सकते हैं डिफरेंट कोर्सेज के लिए? कौन तो प्रोस्पेक्टस तो आप लोग हैं जो अभी पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप लोग ये देख सकते हैं कि आपको क्या करना है। सो टीचर एजुकेशन में अगर आप देखें स्कूल टीचर्स में देयर आर नंबर ऑफ डिप्लोमा प्रोग्राम्स, जिसमें मोस्टली जो ज़्यादा जाना जाता है कि आप अगर आपको प्राइमरी टीचर जाना है तो डीएलएड प्रोग्राम, जेबीटी जिसको हम पहले कहते थे, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, इट इज़ 2-year प्रोग्राम्स आफ्टर 10+2 एंड इसको जो डीएलएड प्रोग्राम को देते हैं डाइट्स हैं, इंडिपेंडेंट कॉलेजेस हैं जो ये प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं। इट इज़ ऑफ 2-year ड्यूरेशन एंड आफ्टर +2 यू कैन एनी स्ट्रीम से आप इस डिप्लोमा प्रोग्राम को कर सकते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट्स ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग दिल्ली में डाइट्स हैं बड़े सारे जो डीएलएड प्रोग्राम्स करवाते हैं। तो वो टीचर एजुकेशन के डिस्ट्रिक्ट लेवल के इंस्टीट्यूशंस हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, फीस स्ट्रक्चर बहुत कम होगा और क्वालिटी वाइज भी वो ज़्यादा बेटर रहेंगे। बड़े सारे अदर इंस्टीट्यूशंस भी हैं जो प्राइवेटली मैनेज्ड हैं, आईपी यूनिवर्सिटीज़ में आप देख सकते हो, इंडिपेंडेंट कॉलेजेस हैं जो बीएड भी करवाते हैं, साथ में डीएलएड भी करवाते हैं, वो यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड होते हैं। तो दूसरा डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशंस हैं। अब एक और अपॉर्चुनिटीज़ है यूथ के सामने कि वो अगर स्पेशल एजुकेटर की व्यवस्था हमारे सिस्टम के अंदर समग्र शिक्षा अभियान के तहत हो रही है, तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी है आपके सामने कि स्पेशल एजुकेशन का मतलब जितना भी एरिया है, जितनी भी डिसेबिलिटीज हैं, विजुअल इम्पेयरमेंट है, हियरिंग इम्पेयरमेंट है, मेंटली रिटार्डेशंस हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज हैं, ऑटिज्म है, जितनी भी डिसेबिलिटीज हैं उनको हैंडल करने के लिए मल्टीपल डिसेबिलिटीज के टीचर्स का कोर्सेज हैं। सो डेफ एंड डम का हियरिंग इम्पेयरमेंट के लिए भी कोर्सेज हैं। ये सारे स्पेशल एजुकेशन में आते हैं। तो डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन भी है। ये जो डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन से ट्रेंड लोग हैं, दे आर आल्सो एलिजिबल इन प्राइमरी जॉब, प्राइमरी टीचर के लिए वो एलिजिबल हो सकते हैं। इनके लिए एक और एसेंशियल क्वालिफिकेशन रखा है कि टीचर बनने के लिए यू शुड हैव टेट क्वालिफिकेशन। सो टेट क्वालिफाइड होना जरूरी है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो वो एक आपको ड्यूरिंग द कोर्स आपको करना है। सेकेंड ईयर में जैसे आते हैं तो एलिजिबल टू अंडरगो दैट टेस्ट। सो फिर नर्सरी टीचर ट्रेनिंग है, फिर डिप्लोमा इन आर्ट एंड क्राफ्ट है जो आर्ट एंड क्राफ्ट के टीचर्स हैं, फिजिकल एजुकेशन के टीचर्स हैं, वोकेशनल एजुकेशन के टीचर्स हैं। सो इनमें डिप्लोमा प्रोग्राम्स भी हैं, इनमें डिग्री प्रोग्राम्स भी हैं। तो डिप्लोमा प्रोग्राम्स इज जनरली रिक्वायर्ड टू टीच एलिमेंट्री क्लासेस और वी कैन से प्राइमरी क्लासेस के लिए जितने भी कोर्सेज हैं, या प्री प्राइमरी के लिए। अब टीचर एजुकेशन के दूसरे जो डिग्री प्रोग्राम्स हैं जिसमें मास्टर और बैचलर लेवल पे, पीजी लेवल पे प्रोग्राम्स हैं, जैसे बीएड जनरल एजुकेशन भी है, बीएड स्पेशल एजुकेशन भी है। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि बीएड स्पेशल एजुकेशन की क्या रिक्वायरमेंट है एंड बीएड जनरल एजुकेशन की क्या रिक्वायरमेंट है। मास्टर इन एजुकेशन, ये सारे प्रोफेशनल प्रोग्राम्स हैं, दीज आर ऑल प्रोफेशनल। एंड बीएलएड बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोग्राम्स है। ऊपर आप डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन देख रहे हो, नीचे आप बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन देख रहे हो। तो बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन दिल्ली यूनिवर्सिटी के 10 कॉलेजेस,
में चलता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी ही प्रोवाइड करता है BLEd प्रोग्राम, और पूरे कंट्री में ये BLEd प्रोग्राम नहीं है। इट इज इंटीग्रेटेड 4 ईयर प्रोग्राम्स, आफ्टर +2 इसमें चलते हैं हम, और ये 4 साल का कोर्स है। इसको करने के बाद वो डायरेक्टली पढ़ाएंगे वो प्राइमरी क्लासेस को ही, लेकिन हायर एजुकेशन में वो MEd पे डायरेक्ट एडमिशन वो अपनी ले सकते हैं। सो एक BLEd प्रोग्राम भी हमारे यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी उसको चलाती है। देन वी हैव अपॉर्चुनिटी टू बिकम टीचर्स। सो पूरी दुनिया में सबसे बड़ा सिस्टम इंडिया का है, जहाँ टीचर एजुकेशन के लिए बहुत बड़ा स्कोप है। यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट टीचर एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, उनके एफिलेटेड कॉलेज हैं, गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूशंस हैं, प्राइवेट और सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेजेस हैं, ओपन यूनिवर्सिटीज हैं जो टीचर एजुकेशन को प्रोवाइड करता है। अब नॉमेनक्लेचर एंड प्रमोशनल एवेन्यूज क्या क्या टीचर्स के लिए हो सकते हैं। स्कूल टीचर में आप क्या बन सकते हो? प्राइमरी टीचर्स बन सकते हो, और स्कूल टीचर्स में नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय आर देयर, एंड आवर गवर्नमेंट स्कूल्स आर देयर, आवर प्राइवेट स्कूल्स आर देयर। सो लार्ज अपॉर्चुनिटी, आपके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज एज ए टीचर बनने की है, और हमारे देश को क्वालिटी टीचर्स की सबसे ज्यादा जरूरत है। प्राइमरी टीचर्स, TGTs मीन ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर्स, मीन्स वो एलिमेंट्री क्लासेस को पढ़ाने के लिए। प्राइमरी को PRT चाहिए, जिनके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन DLEd है। TGT के लिए डिग्री प्रोग्राम्स हैं। PGT के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस डिग्री है, प्रोफेशनल डिग्री, दैट इज B.Ed प्लस PG इन एनी स्ट्रीम। जैसे MA आप इंग्लिश में हो, तो अगर आप B.Ed हो तो आप उसको कर सकते हो, आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हो। इफ यू आर ओनली BA B.Ed, देन आप TGT के लिए एलिजिबल हो। इफ यू हैव +2 प्लस DLEd प्रोग्राम, देन आप PRT टीचर के लिए एलिजिबल हो। अब ये जो स्कूल लेक्चरर वाला है, ये PGT और स्कूल लेक्चरर इक्वलेंट थे। ये नॉमेनक्लेचर पहले हुआ करता था, अब इसको थोड़ा डिस्कार्ड किया है। जो लोग अभी सिस्टम में है उनके लिए रखा गया है, अदरवाइज आप जो डेजिग्नेशन है, नॉमेनक्लेचर है, दैट इज पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स, ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर्स। सो कॉलेज टीचर्स में आपके पास अपॉर्चुनिटी है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की, एवेन्यूज भी हैं। अब अगर मैं ऊपर वाली लाइन को ज्यादा, PRT में आप क्या बन सकते हो? प्राइमरी टीचर बनोगे, देन प्राइमरी में हेड टीचर का पोस्ट होता है, देन सेंटर हेड टीचर का पोस्ट होता है, तो क्लस्टर को मिला के, एंड दे वो BPO ब्लॉक प्राइमरी एजुकेशन ऑफिसर तक बन सकते हैं। ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर्स के सामने जो अपॉर्चुनिटीज हैं, वो TGT लग सकते हैं, डायरेक्ट वो हेडमास्टर का एंट्रेंस दे के हेडमास्टर बन सकते हैं, या बाई बच्चे ऑफ प्रमोशंस वो हेडमास्टर की पोस्ट पे जा सकते हैं, फिर हेडमास्टर से वो प्रिंसिपल की पोस्ट पे जा सकते हैं, तो प्रिंसिपल तक वो बन सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स का वो प्रिंसिपल बन सकते हैं स्कूल के, एंड देन उनके लिए जो डिपार्टमेंटल टेस्ट हैं वो क्वालिफाई करना जरूरी होता है, तो प्रमोशन से भी बन सकते हैं, डायरेक्ट टेस्ट से भी बन सकते हैं। PGTs जो आपके नवोदय विद्यालय हैं, केंद्रीय विद्यालय हैं, वो डायरेक्ट प्रिंसिपल लगाते हैं। स्कूल एजुकेशन में भी अब डायरेक्ट प्रिंसिपल वाला कंसेप्ट चल रहा है, तो आप अपनी योग्यता से उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, मिनिमम लेंथ ऑफ सर्विसेज है, देन आप अपग्रेड हो सकते हो। तो ये एवेन्यूज, एंड देन डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन तक आप PGT जा सकते हैं, एडिशनल डायरेक्टर तक वो जा सकते हैं स्कूल सिस्टम के। दिस इज द स्ट्रक्चर और प्रमोशनल एवेन्यू। कॉलेज टीचर में अगर आप जाते हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो, एसोसिएट, एंड देन प्रोफेसर, एंड देन प्रिंसिपल ऑफ दैट कॉलेज। तो ये आपका एक सिस्टम रहेगा। सिमिलर यूनिवर्सिटी में भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो, एसोसिएट प्रोफेसर बन सकते हो, देन हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बन सकते हो, डीन बन सकते हो, असिस्टेंट रजिस्ट्रार बन सकते हो। दीज आर द अपॉर्चुनिटीज बिफोर यू पीपल। सो अब कौन कौन से इंस्टीट्यूशन ये इस तरह का एजुकेशन प्रोग्राम देते हैं? सो वी कैन से
कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन है, यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट्स हैं, SCRT में भी होता है, NCERT का भी अपना टीचर एजुकेशन का है। इन सर्विस टीचर एजुकेशन के लिए सेंटर फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट हैं, डाइट्स हैं, SCRTs हैं, NCERTs हैं, एजेंसीज अंडर SSA हैं, NGOs भी हैं। वो सारे फाउंडेशन कन्वर्जेंस के साथ नेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल का स्ट्रक्चर है इन सर्विस एजुकेशन को प्रोवाइड करने का। सो आपके सामने कुछ दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी और लगभग पूरे देश की हर स्टेट यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है, जहां से आप B.Ed, M.Ed, PhD एजुकेशन कर सकते हैं। एक चीज मैं कहना आपको यहाँ चाहूँगा कि जो एकेडमिक क्वालिफिकेशंस हैं या एकेडमिक कॉलेजेस हैं, वहाँ पे आप अगर आप फॉर एग्जांपल आप इंग्लिश के प्रोफेसर बनना चाहते हो तो यू नीड इंग्लिश ओनली, एंड देन PhD इन इंग्लिश एंड नेट्स इट in that language. But in Department of Education, you need to be PhD in education and some academic master degree. कोई ना कोई आपके पास चाहिए, तो आप टीचर एजुकेटर बन सकते हो, यानी कि टीचर को पढ़ाने वाले बन सकते हो। तो टीचर एजुकेटर्स के लिए थोड़ा क्वालिफिकेशन, एक प्रोफेशनल डिग्री आपको चाहिए होती है, और उसी में आपका पोस्ट या वी कैन से PhD डिग्री भी आपका चाहिए होता है। अब ये हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के कॉलेजेस हैं। तो जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ इस वक्त, इसका नाम सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन है, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है। ये को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जो B.Ed प्रोवाइड करता है, B.Ed, और इसकी जो कैपेसिटी है ये को एजुकेशनल है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी हमारे डिपार्टमेंट के अंदर एक कॉलेज आता है, SPM कॉलेज, ये गर्ल कॉलेज है। महर्षि वाल्मीकि कॉलेज ऑफ एजुकेशन जो है वो को एजुकेशनल कॉलेज है। लेडी इरविन कॉलेज ऑफ एजुकेशन है, ये होम साइंस का है और ये गर्ल्स कॉलेज है। तो कुल मिला के दिल्ली यूनिवर्सिटी में 10 आपके DLED कॉलेज मिलेंगे और 4 आपके B.Ed के कॉलेजेस मिलेंगे डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन को मिला के, जिसका पुराना नाम सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन है। और ये हमारी वेबसाइट है, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन DUAC.in। एडमिशन से रिलेटेड मुझे ऐसा लगता है कि नाउ यू कैन आस्क क्वेश्चंस, एंड देन B.Ed में कैसे आप आ सकते हो, किस तरह से आपको तैयारी करना है, इस मुद्दे पे हम आपसे बातचीत कर सकते हैं। नाउ you can ask questions. Yes. Thank you, sir. If you guys have any queries, you can just open your mic and ask the question directly or put it in the chat box. सर मेरा क्वेश्चन है कि टीचर एजुकेटर के अलावा इसमें M.Ed करने के बाद और क्या क्या स्कोप है? हाँ, टीचर एजुकेटर बनने के अलावा आप ये जो हमारे केंद्रीय विद्यालय हैं, नवोदय विद्यालय हैं, यहाँ जो प्रिंसिपल की जो पोस्ट होती है या प्रिंसिपल बनने के लिए, चाहे बाय वर्च्यू ऑफ वो प्रमोशन जाए या ऐसे जाए, तो उनके लिए M.Ed इज नेसेसरी क्वालिफिकेशन, तो वो वहाँ जा सकते हैं। आप M.Ed करने के बाद PhD कर सकते हो, सो आप टीचर एजुकेशन में भी आ सकते हो। सर प्रिंसिपल के लिए तो उसमें एक्सपीरियंस वगैरह मांगते होंगे ना? यस, हाँ, दैट इज बाय वर्च्यू ऑफ कि आप जॉब में चले गए हैं, तब आप प्रिंसिपल का डायरेक्ट, या आप किसी और एरिया में, फॉर एग्जांपल आप दिल्ली के किसी स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल में टीचर का जॉब कर रहे हैं, एंड आपका एक्सपीरियंस वहाँ पे 10 ईयर का हो जाता है, या 5 ईयर का एक्सपीरियंस है, या 10 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की पोस्ट एडवर्टाइज करते हैं केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय। तो आप उसके लिए भी एलिजिबल हैं, आप डायरेक्ट उस टेस्ट को कर सकते हो, पर उसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका M.Ed होना जरूरी है।
जी सर मेरा एक और क्वेश्चन है जी कि आफ्टर एमएड हमें इसका एंट्रेंस, अगर हमें पीएचडी करनी है तो उसके लिए हमें एंट्रेंस क्वालिफाई करना होगा? दोनों चीजें हैं। आप अगर आप नेट सेट क्वालिफाइड हैं तो आप डायरेक्ट इंटरव्यू में बैठ सकते हैं, इंटरव्यू होगा। और अगर आप नहीं हैं देन आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा। तो दोनों पे है कि आप अगर नेट सेट क्वालिफाइड हैं देन भी आप डायरेक्टली इंटरव्यू में बैठ सकते हैं। इंटरव्यू होता है, एक छोटा सा प्रोसेस है, आपको अपना प्रपोजल सबमिट करना पड़ता है, तो आप टेस्ट से आपको एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है। तो टेस्ट उनके लिए है जो नहीं है नेट सेट क्वालिफाइड। जी ओके सर, थैंक यू सर। एनी अदर क्वेश्चन? If there's anyone who has any question, kindly ask your question directly. गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग। सर एक क्वेश्चन है, जैसे अगर हम दिल्ली बीएड में एंट्रेंस देना चाहते हैं तो वहाँ पर मतलब एक स्पेसिफिक सिलेबस नहीं है बच्चों के लिए, सिर्फ वहाँ दे रखा है कि आप रीजनिंग पढ़ लीजिए, मैथ पढ़ लीजिए एंड जो भी जीके जीएस है वो पढ़ लीजिए। तो हमें काफी टाइम में मतलब इशू आती है क्योंकि कभी जीके का पोर्शन ज्यादा आ जाता है, कभी मैथ का आ जाता है। तो उस हिसाब से हम कैसे तैयारी करें कि भाई एक स्पेसिफिक उस एग्जाम को क्वालिफाई कर सके? ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। एक्चुअली मैं इस टोटल बात को दो हिस्सों में बताऊंगा कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या हैं कोर्स में आने के लिए। तो 50% एग्रीगेट बैचलर डिग्री मास्टर डिग्री में हो तो हम किस तरह से कोर्स डिसाइड करते हैं। और अगर इसमें साइंस, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स, ये आपका इसमें मास्टर बैचलर डिग्री आपका चाहिए। तो हम एक पीजीटी के लिए कोर्स डिजाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप पॉलिटिकल साइंस के एमए हो तो हम पीजीटी के लिए आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है वो पॉलिटिकल साइंस होता है। अगर आप जनरली बीए ऑनर्स या बीएससी ऑनर्स इस तरीके के, तो आपका डिसाइड उस तरीके का होगा। अब नंबर ऑफ सीट्स जो हैं वो सोशल साइंस, साइंस में, अदर लैंग्वेज में, लैंग्वेज का मतलब हो गया हिंदी, इंग्लिश, दो तरह की लैंग्वेज, और अदर लैंग्वेज में हो गया उर्दू, पंजाबी, ये दो लैंग्वेज हमारा यहाँ पे रहता है अदर लैंग्वेज में। तो नंबर ऑफ सीट्स एज पर जो क्वालिफिकेशन है उसके तरह से निर्धारित की है। अब दूसरी बात, जो दूसरा क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और वो कि क्या पढ़ें, उसके लिए क्या पढ़ें। तो जनरली जो हमारा टेस्ट है जो एनटीए करवाता है, एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, और ऑनलाइन टेस्ट है थ्रू आउट 25 सेंटर पूरे कंट्री के, वहाँ पे हम ये टेस्ट कंडक्ट करते हैं। 435 सीट्स हैं हमारे पास। तो उसके लिए हमारा जो टेस्ट बनता है वो टेस्ट एनसीईआरटी 6 to 12th स्टैंडर्ड तक की जो किताबें हैं, एनसीईआरटी या सीबीएसई का, ज़्यादातर एनसीईआरटी पे फोकस करते हैं हम। तो स्कूल एजुकेशन के जो सब्जेक्ट एरियाज हैं, सोशल साइंस में आपको जियोग्राफी, हिस्ट्री, आपको सिविक्स, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स जो भी है वो आपको रखना है अगर आप साइंस, सोशल साइंस स्ट्रीम से हैं। और सारे क्वेश्चन, अगर आप साइंस के हैं तो आपको मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, ये सब्जेक्ट आपको रखने हैं फ्रॉम 6 to 12th। तो 6ठी से 12वीं तक का ही आता है। फिर जनरल रीजनिंग के सवाल हमारे आते हैं। अब क्योंकि हमारा जो टेस्ट है वो सब बच्चों के लिए एक ही है, तो पर जब मेरिट बनता है तो मेरिट स्ट्रीम वाइज बनता है। सो मैथमेटिक्स वाले मैथमेटिक्स के पोर्शन को ज़्यादा अटेम्प्ट करते हैं, जो हमारे सोशल साइंस वाले हैं उनका सोशल साइंस वाला पोर्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है।
जो लैंग्वेज वाले हैं उनका लैंग्वेज वाला पोर्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। सो हम लार्जली जो हमारा करिकुलम है, हमारा जो टेस्ट का जो हमने डिसाइड कर रखा है, अगर आप प्रॉस्पेक्टस पे जाएंगे तो प्रॉस्पेक्टस ये जो मैंने आपको दिया, तो आप डीओ की वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे आपको नंबर ऑफ सीट्स का मिल जाएगा कि डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में 125, एलआईसी में 25, एमबीसीआई में 125, एसपीएम में 63 सीट्स हैं। फिर आपको ये मिल जाएगा कि सिलेबस क्या आएगा, उसके बारे में आपको बड़ी डिटेल इंफॉर्मेशन इसमें मिलेगी। ओवर एंड अबव क्राइटेरिया डिसेबिलिटी वालों के लिए 5% अलग रोस्टर, जो रोस्टर है वो सारी पॉलिसीज उसमें दे रखी है, रिलैक्सेशन दे रखा है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन क्या है, हाउ टू अप्लाई कैसे करेंगे। तो सब्जेक्ट नॉलेज एट स्कूल लेवल टिल सीनियर सेकेंडरी लेवल पे मल्टी चॉइस क्वेश्चन आते हैं, दोनों माध्यम में होते हैं, हिंदी में अंग्रेजी में। रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस के 10 के करीब क्वेश्चंस होते हैं, मल्टीपल चॉइस होंगे। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के लिए हमारे पास हम दो इंग्लिश के पैसेज डालते हैं, 2 हिंदी के पैसेज डालते हैं, जो थीम ओरिएंटेड होते हैं, उनके क्वेश्चंस आपको करने होते हैं। सो टोटल मिला के अगर आप एनसीईआरटी की किताबों को या वी कैन से सीनियर सेकेंडरी लेवल तक के करिकुलम को गो थ्रू करते हैं, देन यू कैन अच्छे से तुम इसको कर सकते हो। यस, एनी अदर क्वेश्चन? So Priyanka, it's over. So questions round is over. Okay. Thank you so much, sir, for such an informative lecture. We are really delighted कि आपने आज हमें इतनी सारी information दी, and the virtual audience must have gained a lot from today's lecture. Now I would hand over the stage to Manish, sir, to do the vote of thanks. Over to you, sir. Yeah, thank you, Priyanka, and always a pleasure. Dr. Kumar has very wisely and creatively adapted the entire discussion and made it even more insightful. Thank you, thank Dr. Sunil Kumar sir for coming in this seminar, and thank you, Priyanka. Also, you are doing a great work for the college and for the department. And if I summarize the whole discussion of Dr. Kumar, so he has started with teaching education. What does it mean, and the role of institutions, how you chose a college, pre-service education program, in-service education program, opportunity to become a teacher, and really wonderful. He has summarized his whole idea in two good sentences. And this was really fantastic. The teachers are made, not born. So he has transformed the whole idea that we can create, you born like a teacher. No, the society and the institutions is going to create teachers just like Department of Education and Delhi University doing. And the next is the knowledge is constructed. So he hit the nail that the knowledge is not that suppose your father is knowledgeable, so you have become a very knowledgeable. So he had hit the social construction of society also. So very important point, that knowledge is constructed, not by birth you are getting some knowledge and coming to this world and rule this world. So this is very important for every student, that you must know that knowledge is constructed. Okay, so thank you sir for this seminar, and your word of wisdom has been the food of thoughts for my student and my college also. And it is an honor to offer vote of thanks at this forum on behalf of Department of History and IQAC. I, Dr. Manish Karmar, express my gratitude to all present here. We are grateful to Dr. Sunil Kumar for his valuable time and comprehensive insight on the education and how we thought about the education. And also we are thankful to all participants for the tuning in and sharing their questions with us. I take this opportunity to thank our principal, IQAC convener, and my all colleagues who present here, Dr. Kamlesh Atri, Dr. Anil Kumar,
Kumar. So thank you very much. I acknowledge, obvious, most importantly, I thank all my student participants who has been the core strength of this whole SARC share. And finally, I'm also grateful to the History Society, SARC chair, GSTS, JCC members, and I'm very much sure that we are looking forward for these kind of sessions in the coming days also. And thank you, my students, for your presence, and all the best for your examination. Thank you, Dr. Sunil sir, for coming and give us a remarkable idea about the teacher education. Thank you, sir.